Hello guys, welcome to today's lecture. Today's lecture, obviously, as we have already discussed, is going to be on time, distance, speed, and time and work. Two topics very closely knit, although they aren't considered to be very close to each other, but they are. Trust me, they very much are. You'll see that in today's lecture very soon. Let's start with it. And just like every day, we'll straight away move to the questions and what kind of questions can we expect here. A very fun thing that I've written here is that for all the people who think that time is relative. Time is relative किसने बोला था? Somebody who says that time is relative? Einstein did. So basically, time is not relative. This one formula is the whole basis of today's lecture. Even the work wala part will use this formula in one sense or another. So there is the ruling principle based on which the whole chapter has been framed. We are going to observe how many variations there can be in a simple looking monstrosity. This formula is going to literally screw up your mind on too many different levels. Don't worry, we'll go through it pretty easily. And mostly the formula, बस ये एक ही formula में पूरा chapter खत्म हो जाएगा. Okay? And work के लिए तो एक भी formula use नहीं करना. Complicated looking sums, but they are by themselves pretty simple. So make sure that you are not getting too much how can I say confused in यार इसकी तो 4 methods है, इसकी 3 methods है. Don't do all of that. We straight away start looking at sums. A few common sums I have placed here. Okay. First of all, a few concepts that I want you guys to be very much clear with. Relative speed. Okay. अगर हम if all of us are going in cars and अगर गाड़ी में समझो मैं गाड़ी में हूँ and आप दूसरी गाड़ी में हो तो you must understand कि the speed समझो अगर हम दोनों 100 की स्पीड से जा रहे हैं if I am going at 100 and you guys are in a bus that is going at 100 देखते देखते हमें ऐसा लगेगा we both are not even moving. If I am going faster तो मुझे लगेगा तुम लोग slowly पीछे जा रहे हो and if you guys are going faster तुम लोग को लगेगा मैं पीछे जा रहा हूँ. This is called relative speed. अगर समझो मैं 100 पे जा रहा हूँ एंड तुम लोग 120 पे जा रहे हो तो द स्पीड एट विच यू विल गो पास्ट मी विल बी द सेम एज कि अगर मैं 10 से जा रहा हूँ तुम लोग 30 से जा रहे हो. व्हाई? बिकॉज द रिलेटिव स्पीड विल ऑलवेज बी 20. ओके एंड जस्ट इन द सेम वे इफ वी बोथ आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर लाइक समझो अगर आप सामने से आ रहे हो मैं इधर से आ रहा हूँ सो एट दैट टाइम द स्पीड्स विल एड अप बिकॉज मैं भी एक स्पीड से आ रहा हूँ आप भी एक स्पीड से आ रहे हो. So collectively we are coming together at a much faster speed than both of us are going at individually. Okay. So this is the concept of relative speed. Now understand that relative speed is going to be your god in today's lecture because सारे जो questions आएंगे वो तुम्हें relative speed पे ही आएंगे in the whole chapter. Okay. Let's make sure you didn't miss a lot. ज़्यादा कुछ मिस नहीं हुआ. Just talking about what the chapter encompasses. Okay, guys. Okay, wait. First, कितने लोगों ने आज actually 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किया है before coming to the lecture? Overall नहीं. In the last 2 to 3 days, how many of you have solved at least 30-40 questions? I got answers from 5, and since you guys can already see कि कौन जवाब दे. Okay, guys, not at all. Trust me. Whoever is anything less than 30, I would suggest you guys leave the room now itself. Because trust me, आज का lecture is going to be a little intense. I highly suggest before you even sit for the lecture, you have seen at least each and every type of question that this chapter has. This is one chapter which has the maximum type of questions. आज के chapter में I can't allow anyone to sit unless they are prepared or at least have seen each and every one. So I guess there are 17. I've gotten answers from 9 people. 9 में से 5 लोगों ने किया है.
at least 30 के ऊपर questions. So I should see the number 17 going down. There are 17 participants. Come on, Rohit, Keshav, you both have to leave. Sudeep, Hitesh, I don't know how many sums you have solved. जिसने भी नहीं किया है, guys, please, I would highly suggest leave the lecture so that you can look at the recording and understand this better. वरना क्या होगा कि तुमने सारे टाइप के क्वेश्चंस देखे नहीं है. नहीं हितेश, वेराइटीज पता है, doesn't, I don't give a damn about you knowing the varieties. No आकाश, सर आकाश तेरा कंसिडर, तेरा लास्ट ईयर का एग्जाम है. धवल, doesn't matter. I want only the people who have legit solved, because today I'm going to require answers from you guys. And if you guys haven't sat for the lecture previously or haven't solved the sums previously, then I really want you guys to solve the sums and then come back to the lecture. Keshav, trust me, CKK questions are not going to even come close to what we are going to do today. Rohit, no. Okay guys, I still am saying, okay, 15. Don't worry, you're not going to miss out on anything. Aaj ka lecture is literally recorded. Each and every session you know is recorded, how it's going to be. So I really suggest the people who haven't solved at least 30 questions, 30 plus तुम्हारा होना चाहिए, तो तुम लोग लेक्चर से निकल जाओ. तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, because then what will happen is that you guys won't benefit as much out of the lecture as you should, and I really don't want that. इनसे ये लेक्चर अभी प्रैक्टिस कर लो. ऐसा रहेगा 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो. 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं है. Practice kar lo, come back, and then you'll be able to understand it much better. Otherwise, you always have the recording with you. It's going to stay with you till the end. Okay. 15. I haven't gotten 15, huh? Rohit, nahi, pehle kiya, it doesn't matter. If you have done it pehle, then you have to leave. I literally have told you have 3 days, at least 40 questions. Per day, 13 questions कौन नहीं कर सकता यार. तुम लोग LR के 5-6 questions तो आराम से कर लेते हो. 4 से 5 क्वेश्चन तो तुम LR और DI के ऐसे ही कर लेते हो when I send you in just 2-3 hours. No, Rohit. See, I'm telling you for your benefit. बाकी मेरा कुछ जाता नहीं, तुम लोग बैठ लो, but you guys are gonna benefit the most only if you have solved. So I'm not gonna say again. Whoever hasn't solved it, just out of respect for me, because trust me, I put in a lot of effort. Just out of respect for it, leave the lecture. Come back when you are done with at least 30 questions. At least 30 questions. So at least तुमने सारे types देखे हुए हैं. Okay? And 30 questions, and please make sure that you are randomizing the question. ऐसा नहीं कि 1 to 10 solve कर, 1 to 30 solve कर रहे हो. Randomize the questions. 1, 15, 27, 36, 45 ऐसे कुछ solve करो. So you must have at least seen all the questions. चलो. Now for everyone who is still in the lecture, we'll continue. Okay. Guys, tell me, if a train is moving, समझो अगर this is the train. हाँ हेमंत, सीटी ब्लैक बुक्स वाले भी चल जाएंगे. I just want you guys to have seen the different type of questions that are in the chapter. Okay guys, tell me. Now this is a train. This train covers 400 meters in 20 seconds. 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है. And this train covers 600 मीटर का प्लेटफॉर्म in 30 seconds. Okay? So tell me, how long is the train? I don't expect a proper answer, या फिर even that the answer will be in exact numbers. I want the way how you will do it. How do you find the length of the train? So let's do it this way. मैं numbers change करके इसको 30 and इसको 40 कर देता हूँ. Okay? Tell me how will you solve this? And guys, आज मेरे सबके answers चाहिए. I want you guys to be active on the chat. So tell me how will you solve this? Or tell me what is the speed of the train? How will you find the speed of the train? चलो. ये 600 मीटर है, 400 मीटर है. Tell me how will you find the speed of the train?
I'm waiting for answers of the chat, guys. I'm literally waiting for answers. No, Vipul, you're wrong. See, very simple. समझो अगर दोनों जगह पे ट्रेन क्या करेगा, दोनों जगह पे ट्रेन अपना जितना लेंथ है उतना तो कवर करेगा ही ना. ये जरूरी भी नहीं है. सी, ट्रेन का जितना भी लेंथ है ट्रेन विल कवर, वो कवर करने ही वाला है पक्का. सो इट डजंट मैटर जो ट्रेन का लेंथ है. लेट्स जस्ट कंसीडर कि ट्रेन इज जीरो लेंथ, ट्रेन का लेंथ जीरो है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों प्लेटफॉर्म्स में 200 मीटर. तो वो जो 200 मीटर है ना, 200 मीटर का डिफरेंस विल बी द ओनली डिफरेंस इन व्हाट द ट्रेन इज ट्रैवलिंग. एंड वो 200 मीटर में फर्क नहीं पड़ेगा कि ट्रेन तुम्हारा 300 मीटर लंबा है, 400 मीटर लंबा है या फिर 2 किलोमीटर लंबा है. समझ लो मेरी बात. These 200 meters, that is the difference between the length of the platforms, will be covered by the train just as good as if the train was a single point. अगर वो ट्रेन की जगह पे एक आदमी भी होता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता. So that means that the 200 meters is covered in 10 seconds. समझ रहे हो? Is everybody understanding what I'm saying? The 200 meters का difference is covered in 10 seconds. Everything else considered. So that means the speed of the train is 20 meters per second. That's it. That's all you have to do. This is a very, very, very classic example of a CET sum. ये वाला question मैंने last 4 साल में चारों बार देखा है. Now understand that what they expect that most students will do is that they will try to find the length of the train, they will try to equate it with this. बाद में compare करेंगे 400 मीटर, बाद में 600 मीटर. पर ये compare करने की जरूरत नहीं है because ये ट्रेन 400 मीटर को जितना टाइम लगाएगा, तो समझो ये प्लेटफॉर्म भी 400 मीटर है, तो वो 400 मीटर वाला तो कवर करेगा ही. इसके ऊपर से इसमें 200 मीटर्स एक्स्ट्रा है ना, तो वो 200 मीटर्स एक्स्ट्रा कवर करने के लिए बस ट्रेन को थोड़ा एक्स्ट्रा मूव करना है. विच वो ट्रेन लंबा हो या फिर इट्स जस्ट एक डब्बे की ट्रेन, इट वोंट मैटर. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट. एंड नाउ यस विपिन, मुझे समझ गया तेरा मिस्टेक क्या होगा. So most of the times when you guys make a mistake, I already know what the mistake is just because I see, because I know ये सब में 4 मिस्टेक्स हो सकती है या फिर 3 मिस्टेक्स हो सकती है, तो वो 3 में से एक तेरा मिस्टेक है, एक आंसर तेरा आ गया, तो इसका मतलब समझ गया कि तूने कौन सा मिस्टेक किया. Now understand this guys. Okay. समझो अगर ये दो जगह पे ये सीधा सा रास्ता है, यहां से एक आदमी चल रहा है एंड यहां से एक आदमी चल रहा है. ओके. The first time that they meet, समझो अगर ये होल रास्ता इज 100 मीटर्स एंड ये आदमी चल रहा है 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से एंड ये आदमी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. टेल मी व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? After 4 seconds, exactly. This is very simple because दोनों का स्पीड देख लेना, दोनों का स्पीड ऐड करना है. They are both moving in the opposite direction ना, so इसका मतलब दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे. So they will meet somewhere here. यहाँ पे 20 मीटर और यहाँ पे 80 मीटर पे वो लोग मिलेंगे. But what if I tell you what is the second time that they meet? How will you do that? When will they meet for the second time? बोलो जल्दी. Somebody tell me what is the easiest way to find out when will they meet for the second time? Come on हर्षिता, विपुल, तुमने जो 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो तुम लोग को आना चाहिए. धवल भी गायब है. रिवर्स रेशियो की जरूरत ही नहीं है. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट मोस्ट पीपल मेक. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. बहुत ध्यान से सुनो. ओके, बहुत ध्यान से सुनो. अंडरस्टैंड कि मैं इन दोनों को अलग डायरेक्शन से ले रहा हूं एंड वो कलेक्टिवली 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं. ये तुम लोग को समझा कि 25 मीटर पर सेकंड कैसे आया? Does everybody understand this? Okay. So can I say instead ये दो जन के बदले there is only one person who is moving from one direction at 25 meters per second.
एंड ये लोग 4 सेकंड में मिलते हैं, क्यों? क्योंकि 25 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। तो ये बंदा यहां पे पहुंचेगा 4 सेकंड में। इन 4 seconds this guy will reach here, he will cover the whole road. Does everybody understand what I'm saying here? कि ये दो बंदे के मतलब मैं एक ही बंदा ले रहा हूं। ओके, सो ये 100 मीटर कवर किया। व्हाट विल बी द सेकंड टाइम व्हेन दिस पर्सन विल कवर 100 मीटर्स? ये वापस 100 मीटर्स कितने टाइम में कवर करेगा? 4 सेकंड कलेक्टिवली वेट, बट वापस 4 सेकंड में कवर करेगा। सो अंडरस्टैंड दिस, दिस सेम लॉजिक विल वर्क हियर। ये यहां पे अभी 4 सेकंड में मिले ना, तो यहां पे ये कौन से डिस्टेंस पे मिले हैं? 80 मीटर्स। 80 मीटर्स फ्रॉम हियर एंड 20 मीटर्स फ्रॉम हियर, क्योंकि 4 सेकंड के बाद। तो 4 सेकंड के बाद ये कहां पे होगा? 40 मीटर्स पे। एंड वेयर विल दिस गाय बी? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, so this guy will also be at 40 in 4 seconds again. So समझ रहे हो? they will meet at this position, but again after 4 seconds only. So this is as good as one person moving from one direction and going towards the end and coming back. तो समझ रहे हो तुम मेरी बात? Guys, do you understand this? Okay, सोमेश को समझा। Others, do you understand it? So now understand, if I ever want to do this kind of a sum now, all I have to do is, when will they meet for the second time? The total distance, and why does this logic work perfectly is because, समझो अगर ये पूरा रास्ता है, ये यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, 4 सेकंड में ये लोग यहां पे पहुंचे। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? इसने 80 मीटर कवर किया एंड इसने कितना कवर किया? 20 मीटर्स। So total distance covered is 100 meters. So even when they meet for the second time now, or the third time, or the fourth time, each and every time they will have covered 100 meters ka distance. So that means if you have two people who are going in opposite directions, or even when they are going in the same direction में होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे स्पीड, but that is again like वो बस समझने का लॉजिक है. So you have to just consider that as one person. एंड उस पर्सन को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. अगर व्हेन विल दे मीट फॉर द सेकंड टाइम, तो उसको कितना टाइम रिटर्न होने में लगेगा. व्हेन विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम, उसको कितना टाइम वापस जाने में लगेगा. सो दैट रिड्यूसेस योर मेहनत बाय हाफ. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Okay. Does this make the sum much simpler? Understanding that kind of a question, does this understanding make it much simpler? हाँ सोमेश, एवरी टाइम दे विल मीट विल बी आफ्टर 4 seconds. हर बार वो लोग 4 सेकंड पे ही मिलते रहेंगे. दैट इज अ गिवन. ओके. ऑल्सो जस्ट अ मिनट. चलो, लेट्स गो ऑन विद द सम्स. A bike crosses 700-meter long bridge in 35 seconds. How long will it take for the bike to cover a 900-meter long bridge? 900-meter long train at the speed of 54 kilometers per hour in the same direction. इसका मतलब क्या? The bike covers 700 meters का bridge in 35 seconds. तो बाइक का स्पीड कितना हो गया? 20 meters per second. Exactly. So now, how much time will it take for the bike to cover a 900-meter long train? So let's consider कि bike is moving and the train is not moving. The train is moving in the same direction. Na? Let's consider the bike is only moving, the train is not moving only. Because that makes it simpler. मैंने जो वो पहले वाला लॉजिक समझाया ना, उसी का लॉजिक है ये. Okay? So let's consider वो ट्रेन नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है या फिर वो एक ब्रिज है. वो ब्रिज 900 मीटर का है एंड स्पीड ज्यादा होगा या कम? बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. टेल मी गाइस, स्पीड ज्यादा होगा या कम? लेस. एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो हाउ मच विल द स्पीड रिड्यूस बाय? टू कन्वर्ट किलोमीटर per hour into meters per second, we have to multiply it by 5/18. I guess that is something that you guys must be knowing.
Just a minute, just a minute. Yeah, I'm so sorry. Yeah, I'll explain the sum again, okay? For the people who are in the recording wala part, I'll record the sum again. So what I said here is that कि if the speed का ratio, because speed and time are both inversely proportional, the speed का ratio अगर उल्टा कर दिया, then it will become the time का ratio. Because in the formula it is speed equals distance upon time, ना? So that means अगर मुझे speed बढ़ाना है for the same distance, then I have to reduce the time by the same amount, by the same proportion, I would say, for a better word. So in this sum, I have been given that the speed का ratio is 50:40. That is 5:4 का ratio. So the time का ratio has to be how much? 4:5. सही है? Now tell me, अगर this is with stoppage and this is without stoppage. Now tell me, without stoppage अगर इसको 60 minutes लगे, 1 घंटा, ये 1 घंटा तक ड्राइव करेगा without stoppage, then it will reach the same distance as this guy reaches with stoppages. So ratio के हिसाब से this is 5 equals to 60, तो 4 equals to how much? 48 minutes and 60 minutes. That means if without stoppage this guy is driving for 60 minutes, तो with stoppage this guy is driving for 48 minutes to cover the same distance. तो इसका मतलब stoppage time कितना हो गया? 60 minus 48, 12 minutes. Every hour the bus stops for 12 minutes and drives for 48 minutes. If the average speed is 50 kilometers per hour. That is how we get the answer. Did everybody understand? सबको समझा guys? चलो, we'll move ahead. हाँ, sixth one, very good sum. So guys, visualize the sum, okay? Visualize the sum. It's a sum that requires understanding of the concept, not formula understanding या फिर not chapter का understanding. It just requires normal understanding of the whole chapter in itself. Okay? Tell me, in this race, ये समझो पूरा रेस का ग्राउंड है. ओके? ये 3 जन भाग रहे. हमें क्या लिखा है कि ए पहुंच जाता है, उसके पीछे है बी एंड उसके पीछे है सी. ओके? A goes at whatever speed, C goes at whatever speed, and A beats B by 30 minutes and B beats C by 30 minutes. Okay? ये समझा सबको guys? This is the question. हमें बोला है कि A B से 30 minutes पहले पहुंचता है और B C से 20 minutes पहले पहुंचता है. समझा सबको? So now tell me, A C से कितना टाइम पहले पहुंचता है? How much is the time difference between A and C? 50 minutes exactly. And मुझे दिया है C का speed. C का speed is how much? कितना है C का speed? 60 kilometers per hour. तो 60 kilometers per hour उसमें नहीं वो shit, my bad. Even then, that makes the sum much easier. But okay, to make the sum more difficult, let's keep this as C. I will explain B also, okay? मैं B से भी समझा दूंगा. Yeah. I'll also explain with B, don't worry. This is the kind of sum that comes in CET, जिसमें A और C का speed दिया है, okay? So, 60 kilometers per hour is C का speed for now. ओके तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 50 मिनट में सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाउ मच डिस्टेंस विल सी कवर इन 50 मिनट्स? एग्जैक्टली, सी विल कवर 50 किलोमीटर्स. समझ रहे हो? सो दैट मीन्स दिस टू डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर्स. समझ रहे हो गाइस? ये सबको समझ रहा है क्या?
Did everybody understand? So now tell me, now we take the ratio of A and C का speed. अगर C को 50 मिनट में 50 किलोमीटर ज्वाइन करने, इसका मतलब C A से कितना पीछे है? 50 किलोमीटर पीछे है, 50 किलोमीटर। एंड C और A के टाइम में कितना फर्क होगा? द डिस्टेंस इज द सेम। C का टाइम कितना है? देखो A एंड C का स्पीड देख लेते थे। Speed is 75 and C का speed is 60. So the ratio is 5:4. So what will be the time का ratio? The time का ratio will be, what is the time का ratio guys? 4:5. इसका मतलब A ने ये पूरा डिस्टेंस 4 टुकड़ों में कवर किया एंड C को ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे 5 टुकड़े टाइम का। समझ रहे हो? तो जब A के 4 टुकड़े कवर हुए ना फॉर द सेम A की स्पीड पे, A ने 4 टुकड़ों में पूरा रेस कोर्स कवर किया एंड C कवर करेगा 5 टुकड़ों में एंड द 1 टुकड़ा इज दिस, जो लास्ट का बच गया ना, A ऑलरेडी पहुंच गया है तब का। सो दिस इज 1 पीस। इफ 1 पीस इज 50 मीटर्स, सो बाकी के कितने टुकड़े बच गए हैं? C 5 टुकड़े है ना, तो बाकी के कितने टुकड़े बच गए? हाउ मेनी पीसेस आर लेफ्ट ऑफ द रेस कोर्स? टेल मी गाइस। नहीं, द टोटल पीसेस आर 5। उसमें से द लास्ट में C कवर्स 1 एग्जैक्टली। So 1 piece is 50 meters. तो बाकी के 4 pieces will be how much? 200 meters, kilometers or whatever it is given, kilometers per hour. So that means how much is the total track? The total track is 250 meters. अब समझा guys? This combines 2 different concepts, this sum. अभी नहीं समझा, wait I'll explain again. Okay wait I'll explain again. चलो ओके लेट्स सॉल्व। पहले C के साथ सॉल्व करते हैं, बाद में B से सॉल्व करें। B से सॉल्व करना काफी इजी है। लेट्स फर्स्ट सॉल्व विद B, ओके, क्योंकि वो बहुत इजी है। A beats B by how much? 30 minutes. मतलब A इधर पहुंच गया है एंड B is here एंड 60 की स्पीड पे B को कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। एंड A और B की स्पीड में कितना फर्क है? द स्पीड का रेशियो इज 5:4 बिकॉज 75:60। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5। तो ये 30 मिनट्स लगेगा ना इसको, 30 मिनट्स 5 बार। दैट मीन्स टोटल इसको टाइम कवर करने लगेगा 150 मिनट्स। 150 मिनट्स at the speed of 60 kilometers per hour. So if B was 60 kilometers per hour, then the length of the race is 150 kilometers. B से समझा सबको? B वाला समझा क्या? सेम लॉजिक सी के साथ है, बट सी में से फर्क क्या है? सी ने 30 मिनट की जगह पे 50 मिनट दिए हैं। दैट्स इट, बस इतना ही है फर्क। दैट इज ये पूरी रेस है, तो ए और सी में कितना फर्क है? 50 मिनट का फर्क है, 50 मिनट। एंड 50 मिनट में सी कितना कवर करता है? एक टुकड़ा। सी को 50 मिनट बाकी है ना कवर करने के लिए, तो 50 मिनट में 50 किलोमीटर कवर करेगा, बिकॉज 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट।
तो by the same logic speed का ratio is how much? 5:4. So time का ratio has to be 4:5. तो C को पांच टुकड़े लगते हैं पूरा कवर करने के लिए। अगर एक टुकड़ा है 50 किलोमीटर का, तो बाकी 4 टुकड़े कितने किलोमीटर के होंगे? 200 किलोमीटर। So that means the total race is of how many kilometers? What is the total race? 250. 250 किलोमीटर। आकाश समझ रहे हैं सबको गाइस? Does everybody understand now? So अगर तुम्हें ये सम अब नेक्स्ट टाइम आया ना, तो तुम्हें आधा भी टाइम नहीं लगेगा। यू बिकॉज बाय नॉर्मल मेथड दिस मेथड विल आराम से टेक लाइक 1 फुल पेज टू सॉल्व, अगर बेसिक मेथड से किया तो। समझ रहे हो? सो दिस रिड्यूसेस योर टाइम एटलीस्ट बाय तुम्हारा 30% 40% टाइम में पूरा हो जाएगा, मे बी इवन 25% टाइम। ओके, तो प्लीज ये मेथड वापस प्रैक्टिस कर लेना। चलो, Ram can finish a research paper in 2/3 times as Shyam can finish it. The total of that time is a multiple of a 2 single-digit prime numbers whose cubes are 3-digit numbers. Understand this very carefully. The total time is a multiple of 2 single-digit prime numbers. Single-digit prime numbers कितने हैं guys? There is 2, there is 3, 5, 7. और कोई है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स? Now, the total of the time is a multiple of 2 single digit prime numbers whose cubes are 3-digit numbers. इनमें से 3-digit numbers cubes कितनों के हैं? किस किस के cubes 3-digit number है? What is 2 का cube? 8. This is 27, 125 and 343. So that means इनका मल्टीपल 35. दिस इज जस्ट अ कनिंगली काइंड ऑफ फ्रेम्ड क्वेश्चन, बस डरावना दिखने के लिए है। ओके, द टोटल ऑफ देयर टाइम इज 35 मिनट्स। 35 मिनट्स में से टोटल टाइम, मतलब राम अलग से सॉल्व करेगा एंड श्याम अलग से सॉल्व करेगा, तो दोनों को 35 मिनट्स लगेंगे, दोनों का टाइम ऐड करके। सो राम कैन फिनिश द पेपर इन 2/3 द टाइम्स एज श्याम। दैट मींस इसके 5 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े, ईच टुकड़ा कितना हो जाएगा? हाउ मच इज ईच एंड एवरी पीस? 7। तो राम का टाइम हो जाएगा 2 टुकड़े का एंड श्याम का टाइम हो जाएगा 3 टुकड़ों का। सो व्हाट इज राम का टाइम? 14 मिनट्स एंड श्याम का टाइम इज 35 मिनट्स। ओके, अरे सॉरी 21 मिनट्स में मैं भी क्या पागल जैसा। 21 मिनट्स, ये समझा सबको? 14 मिनट्स 21 मिनट्स कैसे आया मुझे राम एंड श्याम का टाइम? हाँ, वो विपुल 35 बाय मिस्टेक लिख दिया रे। ओके, नाउ अ वेरी सिंपल मेथड, वर्क में यू विल यूज दिस मेथड ऑलवेज। ये मेथड है ना, टैटू बनवा लो, ये इतना काम आएगा मेथड। द मेथड इज, अगर 2 जन साथ में काम कर रहे हैं, एक को x टाइम लगता है, दूसरे को y टाइम लगता है। सॉरी, 2 जन अलग से काम कर रहे, a को लगता है x टाइम एंड b को लगता है y टाइम, तो दोनों को साथ मिलकर करने में कितना टाइम लगेगा? उसके लिए xy बाय x प्लस वाई। xy by x plus y। ओके, तो इफ आई वांट टू फाइंड द टाइम कि राम और श्याम को टोटल मिलके कितना टाइम लगेगा, तो मैं कैसे करूंगा? 14 into 21 by 14 plus 21, that is 35। 7 into 2, 7 into 5, 42। 42 divided by 5, 8.4 minutes। समझा सबको गाइस? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस?
इज इट मच सिंपलर नाउ? अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो फटफट हो जाएगा। ओके अब तक के सारे क्वेश्चन ट्रस्ट मी 30 सेकेंड्स में हो सकते हैं विथ माय मेथड्स। चलो लेट्स मूव अहेड। A, B and C can finish building and ये मेथड का फायदा भी बताता हूं मैं तुम लोग को, ये एथ वाले सब में पता चलेगा, ऐसा एकदम स्टार्ट करके रखो ये सबको। A, B and C can finish building a wall in 9, 12 and 18 days respectively. How long will all of them take to finish the work if एक मिनट if they work one day after another starting from A, B and C? Okay guys understand this. इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है एंड तीसरे दिन सी काम करता है एंड देन वापस साइकिल रिपीट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गाइस? ओके द बेस्ट मेथड, द फास्टेस्ट मेथड एंड द ओनली मेथड यू गाइस विल यूज इज दिस। कैलकुलेट द टोटल वर्क दैट इज टू बी डन। वो टोटल वर्क कैसे मिलेगा? 9, 12 एंड 18 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्यों? आई एक्सप्लेन लेटर, बट एलसीएम ले लो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल थ्री? व्हाट इज द एलसीएम? ए एचसीएफ नहीं बोला, एलसीएम बोला है सोमेश। एलसीएम इज 36 एग्जैक्टली 36। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाई द एलसीएम। तो समझो अगर पूरे दीवार में सिर्फ 36 ब्रिक्स लगाने हैं, देयर आर ओनली 36 ब्रिक्स इन द होल वॉल, ओके? तो एग्जैक्टली वर्क पर यूनिट ए विल हर एक दिन ए डालेगा 4 ईंट, हर एक दिन बी डालेगा 3 ईंट एंड एवरी डे सी विल पुट 2 ब्रिक्स। समझे? इसीलिए ए को लगते हैं 36/4 9 डेज, बी को लगता है 12 डेज एंड सी को लगता है 18 डेज। डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सबको समझा गाइस अभी तक? गाइस आई एम वेटिंग। धवल तू वापस आ गया? सम सॉल्व कर लिया तूने? धवल कितने सम सॉल्व करके आए बोल तो? बस 10 एक्स्ट्रा सम करके चला आ गया। चलो तो नाउ बाय दिस लॉजिक अंडरस्टैंड गाइस, अब ये तीनों एक एक दिन काम कर रहे हैं। तो पहले दिन पे ए काम करेगा तो वो कितना 4 ईंट लगाएगा, सेकेंड दिन पे बी काम करेगा तो वो 3 ईंट लगाएगा एंड थर्ड दिन पे सी काम करेगा तो वो 2 ईंट लगाएगा। टोटल कितने ईंट हुए? 9 ईंट। समझ रहे हो? तो 3 दिन में 9 ब्रिक्स लग गए। सो टोटल 36 ब्रिक्स लगाने में कितना टाइम लगेगा? एग्जैक्टली 12 डेज। दैट इज योर आंसर। समझा सबको? दैट्स इट। अब ये तुम्हें जब आगे हम थोड़े डिफिकल्ट सम्स पे पहुंचेंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मेथड की वजह से पूरा सम कितना चिंदी हो जाता है। ओके विपुल वो 4, 3 and 2 अपनी अपनी मेथड मत निकल। 4, 3 and 2 का एलसीएम इधर चला है, वहां पे नहीं चलेगा। अगर नंबर बदल दिया तो एलसीएम नहीं चलेगा हर जगह पे। डोंट डोंट मेक अ मेथड आउट ऑफ नथिंग। ओके यूज अ लॉजिक बिहाइंड ईच एंड मेथड। मैंने जो भी निकाला उसके पीछे एक लॉजिक है। ओके अ ट्रेन क्रॉसेस 500 meters tunnel in 50 seconds and 800 meters tunnel in 80 seconds. ओके सो इससे हमें सबसे पहले गाइस हम क्या ढूंढ सकते हैं? मैंने ये लॉजिक सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में समझाया। तो हम इससे क्या ढूंढ सकते हैं? स्पीड। एग्जैक्टली स्पीड कितना? 10 meters per second स्पीड आ गया। ये समझा सबको? 10 meters per second स्पीड कैसे आया? एग्जैक्टली ग्रेट। मतलब
300 मीटर में ट्रेन 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है 30 सेकंड में, जिसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड में 50 सेकंड, अरे एक मिनट, हाउ लॉन्ग इज द ट्रेन, अरे 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 अरे, ये मैं थोड़ा नंबर इजी, तुम लोग को इजी नंबर देने के चक्कर में मेरा सम गलत मैंने कर दिया है। ये सब में तो पूरा ट्रेन का डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा। ट्रेन का लेंथ, या सो लेट्स मेक इट दिस वे। ये है ना 400 लेते हैं एंड इसको ले लेते हैं 700। ओके, डोंट वरी, व्हेन आई अपलोड द शीट ना तब ये करेक्शन कर दूंगा मैं। ओके, सो द ट्रेन टेक्स, वापस द सेम लॉजिक हो जाएगा, 300 मीटर्स 30 सेकंड्स का डिफरेंस। ओके, सो ट्रेन को कितना टाइम लगा 300 मीटर कवर करने के लिए? 30 सेकंड्स। सो दैट इज ट्रेन का स्पीड इज 10 meters per second. So now using the speed we will take any one case. अगर 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है और ट्रेन को लगता है 50 सेकेंड कवर करने के लिए, सो हाउ मच डिस्टेंस इज द ट्रेन ट्रेवलिंग इन 50 seconds? हाउ मच डिस्टेंस डज द ट्रेन ट्रेवल? एग्जैक्टली 500 मीटर्स। अगर 500 मीटर्स में से 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है या फिर 400 मीटर का टनल है, तो ट्रेन का लेंथ कितना हो गया? 100 मीटर्स। समझा सबको गाइस? ओके ओके, धवल या फिर विपुल या फिर वेद, एनीवन प्लीज रिमाइंड मी टू गिव यू अ ट्रिक क्वेश्चन। ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर रिमाइंड टू गिव यू अ ट्रिक क्वेश्चन टुमारो। एलआर के मतलब मैं ट्रिक क्वेश्चन दूंगा। ओके, कल बस सुबह मैसेज कर देना, आई हैव दैट इन माइंड, बट मैं भूल ना जाऊं। दैट इज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। चलो 10th, a train crosses a 360 meters long tunnel in 30 seconds, a 720 meter long tunnel in 60 seconds. How long will it take to cross a 2160 meter long station platform? चलो बोलो guys, what is the best way to do this? चलो गाइस बोलो जल्दी, ये कैसे करूंगा मैं? ओके, एग्जैक्टली 180, रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है, वेट टाइम लेने की भी जरूरत नहीं है। सी अंडरस्टैंड दिस सम इज वेरी क्लासिक सीईटी का रोकड़ा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन, बिकॉज ये उन्होंने डाला ही उस वजह से है। अगर कोई सॉल्व करने गया ना तो टाइम लगेगा, एंड जिसको पता है कि ये सॉल्व नहीं करना है उसको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ट्रेन को 360 मीटर्स कवर करने में कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड। तो हमें तो बस इतना पूछा है ना कि 2160 लॉन्ग प्लेटफॉर्म स्टेशन है, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इट डजंट मैटर कि ट्रेन कितना लंबा है या फिर उसका स्पीड कितना है, वी हैव टू स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई इट। लाइक 720 मीटर्स को क्रॉस करने में 60 सेकंड्स लगा, मैं उसका ट्रिपल कर दूं तो 2160 लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? ट्रिपल 180 मीटर्स। स्पीड ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। समझे सबको गाइस? दिस इज अ वेरी, एकदम बोलते हैं ना ये वाला सम आएगा तो बहुत लोग सॉल्व करने लगेंगे। मेनी पीपल विल ट्राई टू सॉल्व इट, बट दिस इज नॉट वर्थ सॉल्विंग, दिस इज जस्ट दिमाग यूज करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ A and B started working on a project which would have taken them 28 and 42 days alone respectively. B started working and A joined later, and the work got completed in 24 days. After how many days did A join the job? Okay, ये सम समझा? ये सम समझा कैसे करेंगे? Can somebody help me out with how will we do this sum? Tell me your method, how will you solve it? Okay, Ved will take LCM, बाद में बाकी लोग? हाँ आकाश, how will you do this? 1 divided by method मतलब
What is that method? चलो guys, whoever can give an answer, please give me an answer. Where are the others? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. दोनों का वर्क पर डे निकालेगा. ओके, सोमेश इज सेइंग दोनों का वर्क पर डे निकालेंगे. A and B work for 24 days together. नहीं, the work totally got completed in 24 days. धवल प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़. पूरा काम 24 दिन में खत्म हुआ. तो सोमेश इज सेइंग कि दोनों का वर्क पर डे निकालेगा. विपुल इज सेइंग कि A by 1 by A का वर्क एंड 1 by B का वर्क इक्वल्स टू टोटल वर्क. ओके, अच्छा, विपुल यू आर सेइंग दैट इज द CK मेथड. ओके, नाउ आई टेल यू माय मेथड. ओके, नाउ ये सब गलत छोड़ो. अंडरस्टैंड दिस. टोटल टाइम कितना काम किया है? 24 दिन. 24 दिन टोटल काम किया है. ए ने बीच में से ज्वाइन किया. बी ने कितने टाइम के लिए काम किया है? पूरे टाइम के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए काम किया है? टेल मी. बी ने जितना टाइम था पूरा टाइम काम किया. एग्जैक्टली. तो 24 दिन बी ने काम किया. अगर बी को टोटल कितने दिन लगते हैं? अगर अकेला काम किया तो बी को कितने दिन लगेंगे? 42 डेज. 42 डेज में वो पूरा काम करेगा. तो वो 24 दिन में कितना काम करेगा? टू थर्ड. एग्जैक्टली. गाइस समझ रहे सबको? हाँ गाइस, डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, वो सॉरी, वो 24 नहीं, वो 28 ले लेते हैं. इट इज 28. दिस इज द प्रॉपर. क्या मैं सारे आंसर्स क्वेश्चंस खुद बनाता हूं ना? या दिस इज 28. ये 24 नहीं, 28 है. अगर बी 42 डेज में पूरा काम करता है तो वो 28 डेज में कितना काम करेगा? टू थर्ड. समझ रहे हो गाइस? डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द टू थर्ड का लॉजिक? इसका मतलब पूरे काम के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े बी ने किए, तो लास्ट का 1 टुकड़ा ए ने किया ना. हर्षिका इज जस्ट सिंपल रे. अगर समझ में मेरे को 15 दिन लगेगा एक 300 पेज का बुक लिखने के लिए. ओके, तो मेरा 10 दिन में कितना पेजेस लिख के होगा? बाय दैट लॉजिक, हाउ मेनी पेजेस विल आई कवर इन 10 डेज? टेल मी हर्षिका. Harshika, I'm waiting for your answer. हर्षिका अंडरस्टैंड, मैं 15 दिन में 300 पेजेस लिख देता हूं, तो मैं 10 दिन में कितने पेजेस लिखूंगा? इट हैज टू बी वो रेशियो में होना चाहिए ना. हर्षिका, आई एम वेटिंग फॉर आंसर, जल्दी बोलो. ओके, लेट्स मेक इट इवन सिंपलर. चलो, व्हाट इफ आई टेल यू कि एक पूरी बिल्डिंग बनाने को मुझे 30 दिन लग गए. ओके, 30 दिन में पूरा बिल्डिंग रेडी हो गया, तो 15 दिन में कितना बिल्डिंग रेडी होगा? 15 दिन में वो बिल्डिंग कितना रेडी होगा? आधा, हाफ. एग्जैक्टली. सो द सेम थिंग. अगर बी को पूरा काम खत्म करने के लिए 42 डेज लगा, तो 28 डेज में बी कितना काम करेगा? दिस इज 14 into 3.
and this is 14 into 2. Got it? That is the simple logic. I guess in this sum, the mistake that I made is यहाँ पे 28 होना चाहिए and यहाँ पे होना चाहिए 24. That is the mistake in the sum. I'll correct it and put it on the drive. Okay, when I put it on the drive. So इसका मतलब अगर मैं पूरे काम को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो बी ने कितना काम किया? 28 दिन में बी ने कितना काम किया 3 टुकड़ों में से? तो 3 टुकड़ों में से ये पार्ट भी बी ने किया एंड ये दूसरा वाला पार्ट भी बी ने किया. तो तीसरा वाला पार्ट किसने किया? Who did the third part? A. समझ रहे हो? तो अब all I have to do is find out कि A को 1/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा. टेल मी. अगर A 24 दिन में फुल काम करता है तो 1/3 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? How much time will A take to do 1/3 of the job? 8 days. Exactly. 8 days. इसका मतलब A has worked for only 8 days. And अगर पूरा काम 24 दिन चला एंड A ने बस 8 दिन काम किया तो when did A join the job? खत्म होने के 8 दिन पहले A ने काम चालू किया. So that means A joined the job after 16 days. समझा सबको? Yes, Akash, this is 10 times simpler than the previous method. And I'm pretty sure ये method किधर भी नहीं सिखाया है. Not even at CK. Or any other classes for that matter. समझा सबको ये method, guys? Did everybody understand? I'm waiting for answers, guys. सबको समझा? Okay, great. चलो, we'll move ahead. वेद एलसीएम मेथड तो बहुत पीछे रह गया. ओके, 12th सम सेम मेथड बट सिर्फ थोड़ा अलग क्वेश्चन है. ओके, A, B and C who can complete the work in 12, 18 and 24 days respectively start working on a project together. मतलब क्या? वो लोग साथ में काम करना चालू करते हैं. A and B leave after 4 and 6 days respectively. How long did C work in all if he finished the final phase of the work alone? Do you understand? ये और पहले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? सबको समझ रहे फर्क क्या है इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में? हाँ गाइस, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि A पीछे से ज्वाइन करता है एंड इसमें A और B बीच में से निकल जाते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? एंड आई हैव टू फाइंड आउट कि C ने टोटल कितना दिन काम किया. अगेन सेम थिंग, तीनों का एलसीएम ले लो कि टोटल काम कितना है. व्हाट इज द टोटल वर्क? तीनों का एलसीएम ले लो. 12, 18 एंड 24. व्हाट इज द एलसीएम? 72. एग्जैक्टली. तो मतलब एक दिन में A कितना काम करता है? 6 पीसेस. एक दिन में B कितना काम करता है? 4 पीसेस. एंड एक दिन में C कितना काम करता है? 3 पीसेस. ओके, A, B and C. And the total job is of 72 pieces. A works for how many days? A works for 4 days. मतलब A ने कितना काम किया? 24 पीस A ने लगाए. B works for 6 days. तो B ने कितने लगाए? 24 पीस. तो C ने कितना काम किया? How much did C work? C finished 24 pieces. 24 pieces C को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? How much time will C take to cover 24 pieces?
8 days. That is your answer. समझा सबको guys? Did everybody understand this? Tell me how simple is this method as compared to the previous method. ये मेथड से सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? Barely 30 seconds. एंड पुराने वाले मेथड से कितना टाइम लग जाता था? अगर तीनों का एलसीएम लेके वो 1 बाय वर्ड 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी करते थे तो कितना टाइम लगता था वो वाली मेथड में? आराम से 1.5-2 मिनट जितना लग जाता था. यस, ये वाला में हमें एलसीएम लेना है टू फाइंड द टोटल वर्क. यस सर. चलो, okay guys, next sum. I'll go to the next sum. A, B and C can complete a work in this much time. Okay? If they are working in recurring cycles of 2, 4 and 6 days respectively, when will the work get finished? Okay? Let's do the same. ये last 3 sums का combination है. सबको sum समझा at least? Did everyone understand the question? Okay. टोटल काम कितना है? व्हाट इज द टोटल वर्क? टोटल वर्क 120 एग्जैक्टली 120. एवरी डे A does 4 units, B does 3 units and C does 2 units. A, B and C. They work in cycles of 2 days, 4 days and 6 days respectively. That means every cycle A finishes 8 units, B finishes 12 units and C finishes 12 units again. तो हर एक साइकिल में कितना कितना हुआ काम? What is the work done in every cycle? 32. समझ रहे हो? 32 minutes काम हुआ. So tell me, how many days will it take? ये एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है ना 32. सो लेट्स टेक व्हाट इज द नियरेस्ट मल्टीपल. नियरेस्ट मल्टीपल बोलो क्या है 32 का? इसके नीचे वाली साइड पे. अरे 32 का मल्टीपल भाई, 32 का मल्टीपल 120 के नीचे कौन सा है? 32 इंटू 3 96. तो 3 साइकिल्स पूरी चल गई. ओके, एंड 3 साइकिल्स मतलब कितने दिन? 2, 4, 6, 12, 24, 36 डेज. 36 डेज में 96 काम हुआ. कितना काम बचा? हाउ मच इज द वर्क लेफ्ट? 24 यूनिट्स इज द वर्क लेफ्ट. 24 यूनिट्स देखते हैं. 8 कवर करेगा 24 कितने टाइम में? 2 दिन में. अरे सॉरी, 8 कवर पहले A काम करेगा. पहले A विल वर्क फॉर 2 days एंड फिनिश 8 ऑफ द जॉब. तो 2 दिन के बाद एट 38 डेज कितना काम हुआ? 96 प्लस 8 दैट इज 104. उसके बाद 4 दिन काम चलेगा. 4 days द वर्क विल गो ऑन एंड 4 दिन में 12 यूनिट्स काम होगा. दैट इज हाउ मच? 116. 116 in 42 days. एंड फाइनली C विल वर्क. हर दिन में C कितना काम करता है? हमें कितना यूनिट्स काम करना है? 4 यूनिट. C को कितना टाइम लगेगा? How much time will C take to finish 4 units of work? How many days? हाँ guys, 2 days exactly. मतलब 44 days में मेरा 120 units काम खत्म हो जाएगा. The answer is 44 days. Did everybody understand? सबको समझा है सम गाइस? Great. Now I'll tell you again. Read this part. Complicated looking simple sums are what this chapter offers us. समझा गाइस? The sums are complicating looking.
But are the sums complicated by themselves? The sums are damn easy. बस थोड़ा understanding चाहिए. Okay, Akash, if you want just the C वाला part ना, understand. C works for 6 days. 6 दिन में every day C works and हर दिन में 2-2 pieces काम करता है. But 42 days में ऑलरेडी 116 काम हो चुका था, तो मुझे C को 6 दिन काम कराने की जरूरत है क्या? डू आई हैव टू मेक C वर्क फॉर 6 days? मेरा 2 दिन में काम हो जाएगा, तो 2 दिन में C will finish the 4 units of work. So मेरा 120 का काम खत्म हो गया. So that is why C will only use 2 days. Okay? Yes guys, chalo, we'll move to the next sum. 15th. 9 men work for 4 hours for 70 days to make 3780 pairs of chairs. Okay? How many days will it take for 48 men working 6 hours every day to finish 6912 chairs? So guys tell me, 9 लोग काम कर रहे हैं 4 घंटे के लिए for 70 days. तो उसमें उन्होंने कितनी चेयर्स बनाई? How many chairs did they make? कितनी चेयर्स बनी गाइस? Exactly. Whoever said 3780, you are wrong. It is 7560. There are 3780 pairs of chairs. Don't rush into the question ever. Especially the questions that I give you. Never rush into them. Okay? So total 7560 chairs. उन्होंने बनाई इतना टाइम एंड इतना डेज एंड इतने लोगों ने काम करके. Okay? Now 48 men are working for 6 hours every day for X number of days and they make 6912 chairs. देखो, पर मैन कैपेसिटी सेम रहता है. मैं 1 घंटे में उतना ही काम कर सकता हूं जितना दूसरा कोई आदमी काम कर सकता है. 1 दिन में इतने ही घंटे होते हैं. ये समझा सबको? Does everybody understand? The efficiency every man is the same. So that means दोनों का रेशियो वाइज सेम होना चाहिए. इक्वल्स टू 7560 है ना? तो अगर मुझे x ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? What is the best way to find x? हाँ guys, what is the best way to find x? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, स्कूल का लॉजिक. So I will do 9. अरे सॉरी, थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा कर देता हूँ. नाइन इंटू 40, अरे 4 इंटू 70 इंटू 6912 डिवाइडेड बाय 48 into 6 into 7560 will be equal to x. Did everybody understand this? सबको समझा ये? Guys, सबको समझा ये क्या है? Now is it difficult to solve the sum? Is it at all difficult to solve the sum? 4 into 99 6912 ना, तो 9 से 9 इंटू 11 9 इंटू 7 नहीं सॉरी हाँ 768 768 6 into how much? 6 into 1 2 128 48 4 into 12 4 into 32 और 12 को
4 into 3, 4 into 4, 3 into 3, 3 into 4, और ये into 8. So this is 3 into 8 into 70. What is the answer, guys? 3 into 8 into 70 is your answer. हाँ, सो बेसिकली थोड़ा इधर उधर होगा, बट दिस इज द कैलकुलेशन. शायद कैलकुलेशन में मैंने किधर तो कोची किया, बट दिस बेसिकली द सॉल्यूशन. दिस इज द वे टू सॉल्व इट. मेरा थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर होगा. नहीं है गाइस, वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है. दिस इज द वे टू सॉल्व इट. ओके, डू यू गाइस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट? मेथड. अरे अरे अरे, guys, do everybody understand the method? That is all that I need to know. अच्छा 9 लेना था, किधर है? अच्छा 9 मैन, सॉरी मैंने 90 मैन ले लिया. माय बैड माय बैड. मैंने 9 ले लिया. मैंने 90 ले लिया. इट हैज 9 मैन. ओके, दैट इज वेयर वी स्क्रूड अप. ओके गाइस, आई होप सबको समझा. लेट्स मूव, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. इज दैट फाइन? 16 पे मूव करेंगे, चलेगा? और डू यू वांट मी टू सॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ दिस सम? Should I move on or do I solve the calculation? Guys, tell me. I'll do accordingly. Okay, I'll move ahead. Chalo. A and B moving with this speed and this speed, walking towards each other at 10 a.m. When they meet, when will they meet if they were 17.5 kilometers apart? Guys, चिंदी जोड़ने में डिफिकल्ट सम है. Tell me, is this at all difficult? सुपर चिंदी. 17.5 किलोमीटर अपार्ट है. उनका कलेक्टिव स्पीड कितना है? 7 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना है? 17.5. दैट इज इंटू 2.5. सो दे विल मीट इन 2.5 आवर्स. 10 बजे चालू किया तो व्हेन विल दे मीट? दे विल मीट एट 12:30. समझा सबको? आई गेस इसमें समझाने की जरूरत नहीं थी. Okay, let's move ahead. Two trains 100 and 120 meters long, running with 72 kilometers per hour and 54 kilometers per hour respectively in the same direction. How long will it take for the trains to cross each other? Okay, guys, tell me. कैसे करेंगे? Straight or will we take them as two trains or one train? Exactly, single train. Total speed कितना है? Total speed is 54 plus 72. Sorry, 54 minus 72 because they are moving in the same direction. Guys, same direction में है, ध्यान रखो. The speed will be minus. Yes, Vipul, the speed will be minus. So the speed is 18 kilometers per hour into 5 by 8, 18. That is 5 meters per second. 5 meters per second. And कितना डिस्टेंस कर रहे हैं कवर? एक दूसरे को क्रॉस करना है तो 220 meters divided by 5. That is 44. That is your answer. A boat running downstream covers 16 kilometers. Boats wale question. I don't know why everybody is afraid of boat wale questions. Are you guys afraid of boat questions? ऐसे डरे ऐसा नहीं है. बोट वाले क्वेश्चंस काफी इजी है. दे डैम सिंपल. सिर्फ थोड़ा अंडरस्टैंड. आई एक्सेप्ट दैट. हाँ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला अलग हो जाता है. यस सोमेश, डोंट वरी, वी आल्सो हैव 5 क्वालिफिकेशंस कमिंग अप. डोंट वरी, आई हैव पुट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर. हाँ देख, 25 क्वेश्चन है अपने पास.
And also this is exercise 1. We also have exercise 2. So we have too many questions to solve. Don't worry. Hello. A boat running downstream covers 16 kilometers in 2 hours. Okay? And 4 hours when it goes upstream. What is the speed of the boat in still water? गाइस उसको डाउनस्ट्रीम आने में 16 किलोमीटर 2 घंटे लग गए एंड अपस्ट्रीम जाने में उसको 4 घंटे लगे. सो दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या है? व्हाट इज द स्पीड डाउनस्ट्रीम? डिस्टेंस बाय टाइम. सो द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर. And the speed, this is downstream, huh? The speed upstream is 4 kilometers per hour. What is the speed of the boat in still water? The speed of the boat in still water is always downstream plus upstream divided by 2. समझ रहे guys? That's your answer. Don't worry, we'll solve more difficult sums ahead, but this is the main concept behind the boat wali questions. Okay, now let's go here. Two trains running in the opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. What is the ratio of their speeds? मुझे स्पीड नहीं पूछा है, मुझे सिर्फ रेशियो पूछा है. हाँ guys? Does the sum look scary at all? Can somebody tell me how to solve the sum? जल्दी जल्दी कोई बोलो. अरे धवल, वेद, विपुल, सोमेश, you guys are giving answers continuously. Okay, d constant बाद में क्या? अगर d constant ले लिया then you should have two things ना. You should have speed and time. So how will you solve this? चलो भाई जल्दी, टाइम नहीं इतना सारा. ST into ST कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं. Exactly, Ved, you are perfectly right. Guys, understand this. There are two trains. मुझे the saving grace here is I have been asked only ratio of their speeds. अगर मुझे बोला ना कि स्पीड ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ सकता. अगर मुझे बोला डिस्टेंस ढूंढो, मैं नहीं ढूंढ सकता. I can't find the speed and distance because अगर in the formula there are three things: speed, distance, and time. I need to have at least two things to find the other. अगर मेरे पास सिर्फ एक चीज है ना तो मैं बाकी दोनों में से कोई नहीं ढूंढ सकता. This is a basic principle of maths. Understand this, okay? But what I can do, I can find the ratio of two because speed and time are inversely proportional. तो अगर मुझे टाइम का रेशियो या फिर स्पीड का रेशियो पता है ना तो मैं दूसरे वाले का ढूंढ सकता हूँ रेशियो. चलो, लेट्स फाइंड द रेशियो. व्हाट इज टाइम का रेशियो? टाइम का रेशियो इज 27/17 and because I don't know their proper ratio, because मुझे उनका एग्जैक्ट नहीं बताया ना, I will have to use this 23 seconds. 23 seconds is the speed, collective speed when they are coming together, the reduced time as compared to when they are coming together. Let's take this. कितना आ गया? इधर आ गया 4 and इधर आ गया 6. So what is the ratio of the time? टाइम का रेशियो कितना हो गया? 3:2. तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3. हो गया आंसर. समझे गाइस? I have only been asked what is the ratio of their speeds. I can find ratio. I can find nothing else. Okay? चलो, we'll move
length of one train is 120 meters more than another. When they run in opposite directions, they cross each other in 20 seconds. Hmm? When running in the same direction, it takes them 2 minutes. Find the speed of the faster train if the speed of the slower train is 45 kilometers per hour. Okay? Same, हम क्या लेंगे? रेशियो. टाइम और स्पीड दिया है ना, ऑलवेज रेशियो. टाइम का रेशियो क्या है गाइस? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? 20 seconds is to 120 seconds. सही है? This is opposite direction, this is the same direction. So the ratio is 1:6. So what will be the speed का ratio? 6:1. Now understand this. This is opposite में speed and this is same direction में speed. Opposite में speed क्या होता है? If the one train is running at A and the second train is running at B. So in opposite, the speed will be A plus B. When they are going again in the same direction, the speed will be A minus B. समझ रहे हो? Did everybody understand this, guys? तो let's just find simply ऑपोजिट में 6 and 1. ऐसे कौन से नंबर्स है जो ऐड कर दूं तो इतना आता है, माइनस करो तो इतना आता है? चलो वो भी छोड़ो, उससे भी इजी मेथड ये रहा. ये अंडरस्टैंडिंग से भी ज्यादा सिंपल मेथड इज सिंपली ऑल यू कैन डू इज faster train and slower train. Faster train will be ratio wise faster train will be 6 plus 1 and the slower train will be 6 minus 1. So faster train का speed का ratio कितना हो गया? 7 and slower train is 5. ये समझा सबको? 7:5. Now tell me, मुझे स्लोअर ट्रेन का स्पीड दिया है ना, व्हाट इज द स्लोअर ट्रेन का स्पीड? 45. इफ रेशियो में 5 is 45, so what is this? What is 7? Exactly, that's 63. The speed of the faster train is 63 kilometers per hour. Okay, well, I'll repeat the whole question. चलो. हाँ, इसमें 3 बार रेशियोज लेना है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए. सो हमेशा आई अंडरस्टैंड. चलो सिंपली आई हैव बीन गिवन टाइम्स का रेशियो. टाइम का रेशियो इज 20 seconds when they are going in opposite directions and same direction में 120 seconds. So that is 1:6. Now if I want speed का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:1. राइट? इतना समझा तुम्हें? So now simply the ratio of the speeds of the faster train to the slower train will always be this plus this is to this minus this. Opposite plus same is to opposite minus same. So the faster train will be 6 plus 1, that is 7, and the slower train will be 6 minus 1, that is 5. तो अगर मुझे 5 पता है, आई हैव बीन गिवन दैट द स्लोअर ट्रेन का स्पीड इज 45. So we have simply used, see, I know opposite speed कितना है? A plus B. Same speed कितना है? A minus B. So opposite plus same कर दे. चलो, what is opposite plus same? Equals to 2A plus B. Sorry, 2A. What is opposite minus same? Opposite minus same कितना हो जाएगा? बोलो, what is opposite minus same? 2B.
सो रेशियो क्या आ गया, दोनों साइड कट हो गया तो A is to B. समझे? Now do you understand how did that step come? It's as simple as that. Did everybody understand the sum guys? सबको समझा क्या? तो guys tell me, ये 120 मीटर मोर की जरूरत थी क्या? Was the 120 meter more length necessary? It was just there to confuse you. Yes, wait, the same you can apply everywhere. The same concept applies. Chalo. I hope everybody understands. The length of one train is 140 meters more than that of another train. Okay? When they are running in opposite directions, they cross each other in 35 seconds. If they are running in the same direction, the faster train takes 4 times than the previous time to cross the slower train. Find the speed of the faster train if the speed of the slower train is 27 kilometers per hour. समझ रहे हो guys? Is the 140 needed? बोलो, it's exactly the same sum like previous वाला. Let's solve. टाइम का रेशियो कितना है ऑपोजिट एंड सेम डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में 35, सेम डायरेक्शन में 4 into 35. So in short we can simply say कि रेशियो कितना है? What is the ratio? 1:4. Exactly 1:4. तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1. So what will be the ratio of the speed of the two trains? Faster train is to slower train कितना हो जाएगा रेशियो? 4 + 1 इधर लिख देंगे एंड 4 - 1 इधर लिख देंगे. हमें स्लोअर ट्रेन का स्पीड दिया है ना 27, तो फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना हो गया? अब तुम लोग बोलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने कितना टाइम लगा तुम लोग को? How much time did it take to solve the question? And trust me, this is a complicated question. Normally ये क्वेश्चन अगर पुराने मेथड से करते तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता था. So understand this. चलो, a man covered a certain distance at an average speed of 50 kilometers per hour and comes back at a speed of 40 kilometers per hour. Find the average speed of the man during the whole journey. Okay guys, normally this formula for average speed is total distance upon total time. ये है एवरेज स्पीड फॉर्मूला. बट मुझे एवरेज स्पीड, मुझे ना टोटल डिस्टेंस पता है ना मुझे टोटल टाइम पता है. ओके, सो नाउ अ सिंपल वे टू फाइंड दिस. आदमी गया कितने स्पीड में? 20 की स्पीड पे. आदमी आया कितनी स्पीड पे? 50 की स्पीड पे. सॉरी 50 की स्पीड पे गया, 40 की स्पीड पे आया. द टोटल डिस्टेंस, टोटल नहीं, वन वे डिस्टेंस, लाइक एक साइड जाने का डिस्टेंस इज इन दोनों का एलसीएम. व्हाट इज द एलसीएम? 200. 200 इज द वन वे डिस्टेंस. लिख के ले लो, 200 इज द वन वे डिस्टेंस. अगर 200 डिस्टेंस है तो 50 की स्पीड पे कितना टाइम लगा? 4 घंटे. 40 की स्पीड पे कितना टाइम लगा? 5 घंटे. सो अब मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है. खत्म. कैसे करूंगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस इज 400. ये वन वे डिस्टेंस मिला ना, वन वे डिस्टेंस इज 200. So total distance is 400 divided by total time, 4 hours plus 5 hours, 9. So the answer is 44 1/4.
44.44 वैसे ही कर दो. 44 4/9 सॉरी. हाँ वो 2ab a plus b वाला भी यूज कर सकते हैं आकाश, बट आई गेस माय फॉर्मूला माय मेथड इज मच फास्टर देन दैट. See guys, I'm always telling you, don't remember formulas. Formulas के पीछे मत भागो. So Akash told me that you can also solve this by this method. 2ab upon a plus b. ये मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा. ये मेथड तुम लोगों ने बुक्स में देखा होगा. But trust me, I always prefer using less formulas. हाँ wait, you can also solve by using d as 1. अगर तुम d को 1 ले लिए तो भी चलेगा. तो तुम्हें सेम हो जाएगा. सी तुमने जो d इक्वल्स टू 1 लिया ना, बाद में तुमने स्पीड से तुमने टाइम डिराइव किया. यू डिराइव स्पीड फ्रॉम द टाइम, राइट? दोनों से. So you basically, my method is a derivative of this method. My method has been derived from this only. I assume 1d, but what I have noticed is that समझो अगर मैं 50 की स्पीड पे जा रहा हूं एंड 40 की स्पीड पे आ रहा हूं, सो दैट मीन्स मेरा जो ओवरऑल डिस्टेंस है ना, दैट शुड बी a multiple of 50 also and a multiple of 40 also. It has to be because I have taken न्यूमेरिक टाइम्स ना. मैंने 2 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा जितना भी लिया. डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज इट जनरली कम्स आउट टू द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम. बाय दैट आई विल ऑलवेज फाइंड. एंड इट डजंट मैटर इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट 200. 200 के बजाय 400 है ना एक्चुअल डिस्टेंस, तो 400 में मेरा टाइमिंग क्या हो जाएगा? द टाइमिंग विल बी 8:10. So that is my answer is 400 divided by 18. Sorry, 800 divided by 18. Is my answer any different? Tell me, answer में कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं. Simple. So it doesn't matter what your actual distance is. Only in this method it works perfectly. Just take the LCM and बाद में LCM से timings ढूंढ लो. राज फॉर्मुलाज नहीं रहे. फॉर्मुलाज में पीछे नहीं पड़ता फॉर्मुलाज के. ओके, डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द मेथड गाइस? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? हु जॉइन? राज तू कितने सम सॉल्व करके आया? तू वापस ज्वाइन हुआ ना? कितने सम सॉल्व किए राज? चलो, तूने सिर्फ 15 सम सॉल्व किए. तूने 30 सम सॉल्व नहीं किया. मैंने बोला था एटलीस्ट 30-40 सम करके आप सॉल्व. डजंट मैटर, रीजंस नहीं चलते. अगली बार से अलाउ नहीं करूंगा तुझे. बाकी सबको मैंने लिटरली बाहर निकाला क्लास से. चलो guys, let's move ahead. 23rd. A woman covers a distance of 12 kilometers per hour and returns at 15 kilometers per hour and then goes back at 20 kilometers per hour. What is her average speed? Guys, look scary. Okay, राज तू बोल, इसमें तेरा AB वाला मेथड चलेगा? If you want to solve this by your method now, so you will have to use 3ABC upon AB plus BC plus AC. This is the formula. I'm just telling you. इसमें A is 12, B is 15 and C is 20. तो अगर तुम करने बैठे तो पागल हो जाओगे. इसमें अंडरस्टैंड वेरी सिंपली, वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना.
The distance is same. Guys, the distance is same. So let's just take it this way. Wait, how did you solve it? My method or different method? अच्छा, d equals to 1. 60 LCM ले लो. चलो guys. So 12, 15, 20. 60 LCM. कितना आ गया? 5, 4, 3. The total is 180. 180 divided by 12. 15. 15 kilometer per hour. तो समझा गाइस, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड द सम बिकम्स वेरी फास्ट. ऐसे चुटकियों में सम हो जाता है. 10-10, 15-15 सेकंड में सम हो जाता है इफ यू नो द मेथड. Wait, I don't understand what you are saying, but ठीक है, whatever. Okay, 24. A person walks a certain distance and comes back with a car. अच्छा, from car, with the car. It takes him 37 minutes. If he walks both the distance, then it takes him 55 minutes. If he covers the distance, both the distance by car, how much time will he take? Okay, this is walking and car. This is walking. And this is car. Okay, how will we do this, guys? Tell me. How will we do this? Tell me a method, guys. I'm waiting. Okay, Ved will find an equation. Ved, tell me what is the equation that you will form for this. Dhaval, how did you do it? 19 minutes? कैसा है? Tell me your method. अरे वो सब करने की जरूरत नहीं है गाइस. क्या 55/2 कर रहे हो? Understand this. See, you guys are thinking in terms of sum. What is the first thing that I told you? Speed maths के टाइम पे think like you are uneducated. ये इक्वेशन बनाना छोड़ दो. Think like you are uneducated. Okay? जब मैं दोनों बार चल के जा रहा था तब मेरे को 55 मिनट्स लगा. मैं एक साइड कार से आया तो मेरा टाइम कितना कम हो गया? 37 मिनट्स हो गया. तो मैंने कितना टाइम बचा लिया एक साइड कार से आया तो? हाउ मच टाइम डिड आई सेव? 18 मिनट्स. तो अगर मैं दूसरी साइड भी वापस कार से जाऊंगा तो मैं कितना टाइम बचाऊंगा? How much time will I save again? 18 minutes. So my time is 37 minus 18, 19. 19 minutes total. Tell me, was this difficult? Stop making equations for everything. Get out of the mentality कि equation बनाना जरूरी है. अरे हितेश, इसमें क्या रिपीट करूं? सिंपल चीज है. देख, मैं चल के दादर जाऊं तो मेरे को 3 घंटा लगेगा. मैं गाड़ी से गया तो मेरे को 1 घंटा लगेगा. ओके, तो मैं दादर से चल के जाऊं तो मुझे 3 घंटा लगेगा एंड गाड़ी से जाऊं तो 1 घंटा लगेगा. तो मुझे रिटर्न आने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे. इफ आई टेल यू कि मैं जाके रिटर्न आया 4 घंटे में, मैं गया चल के एंड आया गाड़ी में तो मुझे 4 घंटे लगा एंड जबकि मैं दोनों साइड चल के गया तो मुझे 6 घंटा लगा. ओके, तो मैंने टाइम कब बचाया? हाउ डिड आई सेव टाइम? व्हेन आई केम बैक ना, मेरा जाते टाइम कम हुआ क्या? डिड माई टाइम रिड्यूस व्हेन आई वाज गोइंग? हाँ हितेश, यू आंसर मी. मैंने जाते टाइम रिड्यूस किया क्या? मैं चल के ही गया वापस. नहीं, तो मैंने टाइम बचाया आते टाइम ना. तो इसका मतलब मैं गाड़ी में आते टाइम 1 घंटे में आ गया.
तो अगर मैं बोलूं अब मेरे को गाड़ी में ही जाना आना है, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? 1 hour + 1 hour, दैट इज 2 hours. दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है. तो इधर भी सेम है. मैं चल के गया तो 55 मिनट्स लगता है. मैं एक बार अगर गाड़ी में रिटर्न आया, वन वे जर्नी मैंने गाड़ी में किया, दूसरी बार चल के गया, तो मेरा 18 मिनट बच गया, -18. तो अगर मैं वापस, मैं दोनों टाइम गाड़ी में ही आ जा करूं, तो मेरा वापस कितना टाइम बच जाएगा? -18 मिनट्स और हो जाएगा, दैट इज 19 मिनट्स टोटल. मैं 19 मिनट्स में रिटर्न हो जाऊंगा. दैट इज द आंसर. And the last one for today. A boat takes 8 hours to cover a distance of 25 kilometers upstream and comes back 39 kilometers downstream. अरे फॉर्मूला छोड़ दे, कुछ जरूरत नहीं है फॉर्मूला की. ये सब भी, ये सब इतना डरावना लग रहा है, मैं ये भी फॉर्मूला के बिना सॉल्व करके दिखाता हूँ. The same boat takes 10 hours to cover a distance of 30 kilometers in upstream and come back 52 kilometers downstream. Find the speed of the boat in still water. Tell me guys, how will you do this? How will you guys do this? Tell me. टाइम है अपने पास, बोलो. What is the method to solve this sum? Chalo guys, I'm waiting for your answers. What is the method to solve this sum? इक्वेशन. ट्रेडिशनल मेथड क्या है वेद? ट्रेडिशनल मेथड जो तू बोल रहा है उससे सॉल्व किया तो पागल हो जाएंगे, फॉर्मूला से तो बहुत पागल हो जाएंगे. The traditional method that you are saying is distance. So the distance is 25 into v minus u plus 39 into v plus u equals to 8 hours. बराबर. यही वाला तू वापस लगाएगा. 10 equals to 30 into v minus u plus 52 into v plus u. Is this the method? And then you will equate this, then you will take this as x, you will take this as y, this as x and this as y. Okay, let's try to solve this by this method and then I'll give you my method. Okay? Let's take this as x. X, y, x and y. Equate these. हाँ, बाद में क्या करेंगे? Tell me, I want to see if you guys know this method. चलो चलो गाइस बोलो कैसे करेंगे? Multiply by xy. Okay, then you will compare the two equations. कैसे? Okay, I'm just saying if you want to solve this equation in a better way ना, वो तुम्हारे वाला धतिंग करने के बदले what you can do is
इसको 10 से मल्टीप्लाई करो एंड इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो इफ यू वांट टू सॉल्व बाय इक्वेशन, बट आई हाईली सजेस्ट कि इक्वेशन से सॉल्व ही मत करो. ओके समझ रहे हो? डोंट सॉल्व बाय दिस. आई टेल यू माय मेथड. तुम इधर तक आ गया ना, बाद में समझो. V एंड U मतलब जो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम है, टेक देम एज मल्टीपल्स. उनका मल्टीपल्स निकालो. दे शुड बोथ बी डिविजिबल बाय D1 एंड D2. D1 एंड D2 से डिविजिबल होना चाहिए उन दोनों को. 25, 30 एंड 52 दोनों साइड. दोनों इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है फॉर नाउ. ट्राई टू फाइंड V एंड U. जिधर मैं उनको अगर ऐड करूं तो वो 25 से डिविजिबल होने चाहिए, एंड सब्ट्रैक्ट करूं तो 25 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड ऐड करूं तो 39 से डिविजिबल होना चाहिए. बोलो जल्दी. ओके चलो, उससे भी छोड़ो. ये दोनों में से कॉमन मल्टीपल क्या है? व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल हियर? 25 एंड 30 का कॉमन मल्टीपल है 5. ये दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? 13. तुम्हारा आंसर आ गया. V एंड U को 13 और 5 ले लो. ओके लेट्स सब्स्टिट्यूट. V एंड U को 13 एंड 5 ले लो. 25 बाई 13 माइनस 5 कितना आ गया? 8. सॉरी 13 प्लस 5. आई एम रियली सॉरी. 13 प्लस 5 18. अरे एक मिनट. सॉरी गाइस, थोड़ा मेरे से लोचा हुआ. लेट मी जस्ट. $52. What is your downstream plus upstream distance? Speed. Downstream minus upstream speed. Minus and plus. The same here. मैं ऊपर ज्यादा टाइम कम डिस्टेंस जाऊंगा ना, एंड नीचे ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस आऊंगा बिकॉज मेरा स्पीड ज्यादा है. Here will be V minus U and here will be V plus U. Now all you have to do is take the common multiple. What is the common multiple here? The common multiple is 5. And इनका common multiple क्या है? 13. Now you have to simply find two numbers. जिनको subtract किया तो 5 आया and जिनको add किया तो 13 आया. ऐसे कौन से नंबर है? 9 and 4. So that means V is 9 and U is 4. समझ रहे हो guys? Did everybody understand how did I get to 9 and 4? सबको समझा guys? So how will you find the speed of boat in still water? This is downstream speed, this is upstream speed. How will I find the speed of boat in still water? 9 plus 4 by 2. 6.5. 6.5 kilometer per hour. That is your answer. समझा सबको guys? Without solving equation you can solve this. This is called, मतलब रेशियो आना ही चाहिए. थैंक यू राज. विद टाइम डिस्टेंस स्पीड में एक एंड वर्क, एक भी काम छोड़ने जैसा नहीं है, एक भी सम छोड़ने जैसा नहीं है. यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम. ओके गाइज, आज का सब कुछ समझा सबको? एंड सोमेश यू वांटेड अ पाइप्स वाला सम ना? वेट, पाइप्स वाला सम एक है मेरे पास, मैंने इधर दिया है. पाइप वाला सम नहीं है, बट पाइप वाले सम में सोमेश यू हैव टू सॉल्व इट इन द सेम वे.
Wait, I will get a pipe वाला sum, okay? मेरे पास है इधर. I'll show how the pipe वाला sum works. ये sum काम कर रहे हैं क्या? Does this sum work well? लीकेज वाला अभी तो एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा. सेंड मी लीकेज वाला सम का एग्जांपल, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ओके? और विल सॉल्व इट ऑन द ग्रुप टुगेदर. चलेगा सुमेश? चलो 26 sum. Guys, 26 sum very similar to this sum that we have done before. A and B fill a tank in 36 minutes and 48 minutes respectively. Initially है ये. Initially both are opened and then A is initially both are opened and then A is closed midway. बीच में से A को बंद कर दिया. It takes total 24 minutes to fill the tank. How much time before the completion of the completion was A closed? How will you do this, guys? 24 मिनट है ना? 24 मिनट के लिए कौन पूरा काम किया है? Who has worked continuously for 24 minutes? B, exactly. And 24 मिनट में B कितना काम कर सकता है? How much does B fill in 24 minutes? नहीं, 2/3 नहीं. B half. Exactly. Wait, you are wrong. Check properly. B को टोटल फिल करने के लिए 48 मिनट्स लगता है. तो B has already filled 50%. A को बीच में से बंद कर दिया 24 मिनट. तो A ने कितना काम किया? How much work did A do? If B finished 50% filling, तो how much did A finish? बाकी का हाफ A ने फिल किया ना? Exactly. बाकी का हाफ भी A ने ही फिल किया, क्योंकि B ने तो सिर्फ 50% टाइम फिल किया है खुद से. सो 50% फिल करने के लिए A को कितना टाइम लगा? How much time did A take to fill 15%? 18 minutes. So that means A ने 18 minutes के लिए काम किया. टोटल काम 24 minutes चला. How much time before the completion of the job was A closed? 6 minutes before. Exactly. That is the answer. 6 minutes. समझा सबको? सोमेश, पाइप वाला हर समय ऐसे ही हो जाता है. इफ यू एवर हैव अ सम जिधर पाइप में लीकेज है, तो इंस्टेड ऑफ फिलिंग इट विल बी माइनस. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग एडिशन इट विल बी प्लस, इट विल बी माइनस. समझ रहे हो? efficiency is the reciprocal of time. If I finish 20 units and you finish 30 units, my efficiency is 1/20 and your efficiency is 1/30, or the other way around. But efficiency वाले sums आजकल CET में बहुत कम आते हैं, बहुत कम. Most of the times we have these sums only. The boat वाला sums are asked very regularly. The boat wala sums are asked most regularly. Okay, but apart from that, these are the major questions that I have seen in CET. All of the questions that I've showed today. Did everybody understand आज का पूरा lecture?